जी बेटा, क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर देयर? blood, bone, tendon, cartilages, ligaments. Yes. Two are left. Two are left. A for areolar and A for adipose. ठीक है बेटे? Okay, please sit down. Okay बेटे, another question is कि what is the composition of blood? What is present inside blood? Yes, Gauri. Blood plasma and blood cells are there. How many types of blood cells are there? 3 types of blood cells are there: white blood cells, red blood cells, and platelets. Okay, okay. All of you know that in RBCs, what is present? A red color pigment is present. That is known as hemoglobin, and its function is to store oxygen. Okay, but white blood cells, they are white in color because of the absence of this pigment hemoglobin. So what is its role? So they protect your body from different kind of diseases. And the third type of blood cells are known as the blood platelets or the yellow blood cells. That is YBC, yellow blood cells or the blood platelets. And the main function of the blood platelets is it helps in the clotting of blood. When you have any injury, then you know that blood comes out from that injured side, but after some time that blood stops. ठीक है, अपने आप स्टॉप हो जाता है ना, तो that is only because of the presence of blood platelets in your body. So blood platelets क्या करते हैं, आपका जो injured site है उसको क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं. ओके बेटे, नेक्स्ट आपको बताया था प्लाज्मा के अलावा, ब्लड सेल्स के अलावा उसमें क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट है. तो ब्लड प्लाज्मा इज अ फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड. ओके बेटे, एंड ब्लड प्लाज्मा जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? हाँ जी, ब्लड प्लाज्मा में व्हाट इज प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा? ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग. व्हाट अबाउट द अदर? द स्टूडेंट वियरिंग ब्लैक हैंकी, स्टैंड अप. व्हाट इज प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा? आपको नहीं बोला बेटे, मैंने उससे आगे वाले को बोला. आप बैठ जाइए एंड स्पीक अप. ब्लड प्लाज्मा में ये 3 चीजें प्रेजेंट हैं. व्हाट आर दीज? जल्दी बताएंगे आप, फिर मैं यहाँ लिखूंगी. पढ़ के नहीं आए ना? What are the substances that are present in the blood plasma? Number 1, yes better speak up. Proteins are present. इसके अलावा salts are present. Then one another thing, that is hormones. Hormones are present. I have used one special term for hormones. What is it? Hormones are also known as chemical messengers. ठीक है बेटे, वैसे तो आपकी बॉडी के अंदर मैसेजेस दे आर जनरली ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ, सिट डाउन, विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर्स. But there is one another system present in your body that release chemicals. These are known as hormones, and these hormones they are also involved in the transportation of messages from one body part to another. Okay बेटे, क्लियर हो गया? बोन हमने सेकंड कनेक्टिव टिश्यू जो है दैट इज बोन. ठीक है, तो बोन इज मेड अप ऑफ ए हार्ड मैट्रिक्स एंड embedded in the hard matrix are the bone cells. Tell me what is the special name given to the bone cells? Yes, children, what is the special name given to the bone cells? Osteocytes. Very good. Osteocytes. Okay, बेटे, osteocytes are known as bone cells and they are embedded inside the hard matrix of the bone. तो bone जो है they are also performing certain important function for your body. What are the important functions that are performed by bones in your body? Yes, बेटे, speak up. And it provides the framework to the body. Yes. And bones protect the delicate organs like heart, lungs of the body. हाँ जी, delicate organs को protect करती हैं. और the bone has a special substance called bone marrow, and the cells are produced in the bone marrow. वेरी गुड. ठीक है बेटे, सारे फंक्शन बिल्कुल करेक्ट है, पर एक फंक्शन और है कि इट ऑल्सो एंकर्स योर मसल्स. आपके जो मसल्स हैं उनको भी ये क्या करती हैं, एंकर करके रखती है. ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? फिर से याद आ गया आपको सारा कुछ? देन एक चीज और है कि बोन जो है दे आर नॉन फ्लेक्सिबल. ठीक है,
रिजिड होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं और कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो आपकी बॉडी जो है उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसने बनाया हुआ है, आपकी बोन्स ने बनाया हुआ है। फिर आपको टू स्पेशल टर्म्स इंट्रोड्यूस की थी, वन इज नोन एज लिगामेंट्स एंड अनदर इज नोन एज टेंडन्स। ओके बेटे, लिगामेंट्स क्या है, व्हाट आर लिगामेंट्स एंड व्हाट आर टेंडन्स? रेज योर हैंड्स। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, बोलिए। Ligaments are special type of tissues which join bone to bone, and tendons join bones with muscles. Very good. Second, ligaments are very flexible, and tendons are not flexible, but Yes. tendons are stronger. ठीक है बेटे, एक चीज बस हमने मिस की है कि हमने यहाँ पे वर्ड यूज करना है कि लिगामेंट्स एंड टेंडन्स बोथ आर स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। द लिगामेंट्स they join the bones with the bones and the tendons they join the bones with the muscles। ठीक है बेटे, बोन्स को बोन से ज्वाइन करने वाले जो लिगामेंट्स हैं वो थोड़े से कैसे रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे, पर वो कहते हैं कि टेंडन्स जो हैं वो कम से कम कैसे रहते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल रहते हैं। क्लियर? अनदर थिंग इज कि वो फाइब्रस होते हैं। कौन फाइब्रस रहेंगे? टेंडन्स, दे आर द फाइब्रस। ठीक है, और उसी के साथ देखो लिगामेंट्स के बारे में क्या लिखा है कि लिगामेंट्स जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। क्लियर बेटे, तभी तो वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे ना, बिकॉज दे आर इलास्टिक। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं कार्टिलेज पे। हाँ जी, तो थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर नोन एज कार्टिलेज एंड वाइडली स्पेस्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस। वाइडली स्पेस मीन्स द सेल्स दे आर नॉट टाइटली पैक्ड। सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, वाइडर स्पेस है, काफी सारी जगह प्रेजेंट है। वी हैव यूज्ड वन special term for the cells of cartilage. What is that? Yes beta, chondrocytes. Very good. Osteocytes are bone cells and cartilage cells are known as chondrocytes. Okay, अब देखिए कार्टिलेज के फंक्शंस हमें बताने चाहिए, तो गिव मी टू फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज के कोई भी दो फंक्शन जो आपके माइंड के अंदर आ रहे हैं। हाँ जी बताइए बेटे। हाँ जी, और एंटी नीचे करके ना जोर से बोलेंगे। It is soft and flexible tissue whose solid matrix is composed of protein and sugar also. It has widely spaced cell. वो मैंने बता दिया हुआ है, बस आपने ये बताना है कि बोन्स की जो सरफेस होती है, बोन की सरफेसेस जो है इनको क्या करते हैं, स्मूथ रखते हैं, स्मूथ रखते हैं। ठीक है, अदरवाइज वन बोन कैन इजीली रब ऑन द अदर इफ कार्टिलेज इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन देम। ठीक है, तो जब भी आपने बोलना है बेटे लाउडली बोलना है, सो दैट अदर स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग एट देयर होम दे कैन आल्सो लिसन यू। ओके बेटे, अदर टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू दे आर जनरली फाउंड इन योर स्किन, मसल्स एंड बिटवीन द डिफरेंट हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो है इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, आपकी स्किन के बीच में जहाँ पे भी स्पेस प्रेजेंट है, मसल्स के बीच में, व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इज देयर, एरोलर टिश्यू इज देयर। ठीक है, तो देखो एरोलर टिश्यू के फंक्शंस हमने आपको अंडरलाइन करने के लिए बोले थे। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बीच में जो भी स्पेस है उसको फिल करते हैं। पॉइंट नंबर 2, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यूज। जो भी टिश्यूज बॉडी के अंदर रिपेयर हो गए हैं, ठीक है, करने हैं जिनको, उसमें कौन इन्वॉल्व है, एरोलर टिश्यूज इन्वॉल्व है। ठीक है बेटे, तो कल बेल बज गई थी, एक छोटा सा हमारा टिश्यू रह गया था एंड दैट इज नोन एज एडिपोज टिश्यू। तो देखो जैसे बोन्स के सेल्स को वी कॉल देम ऑस्टियोसाइट्स and the cells of the cartilage are known as chondrocytes. Similarly, the cells which constitutes the adipose tissues are known as adipocytes. Okay, and these adipocytes are actually the fat storing cells. Okay, तो adipocytes के स्पेलिंग देखिए, adipocytes fat storing cells होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो आपकी बॉडी जो है उसमें बिलो योर स्किन, ठीक है, आपकी स्किन के नीचे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो समटाइम व्हेन यू जनरली कंज्यूम द फैट रिच डाइट, ठीक है, तो आपकी जो है क्या होती जाती है, ये एक्स्ट्रा फैट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता रहता है और उसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपकी स्किन जो है उसके बीनीथ ये फैट ग्लोब्यूल्स जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फैट ग्लोब्यूल्स और दिस एडिपोसाइट सेल्स? तो व्हेनेवर योर बॉडी इज इन नीड ऑफ एनर्जी,
ठीक है। तो ये एडिपोसाइट सेल्स जो हैं वो आपकी बॉडी को क्या देती हैं, एनर्जी देती हैं। इट ऑल्सो एक्ट एज अ इंसुलेटर ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में अगर आपकी बॉडी जो है इट इज एबल टू मेंटेन द वार्म, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज फैट स्टोरिंग सेल्स व्हिच आर नोन एज एडिपोसाइट्स। ओके बेटे, तो देखो फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्टोरेज ऑफ फैट, ऑल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है उसमें से हीट लॉस नहीं होता है एंड आपकी बॉडी जो है वो विंटर में भी वार्म महसूस करती है। क्लियर, सारा रिवाइज हो गया। अब न्यू टॉपिक पे आ गए हैं एंड अवर न्यू टॉपिक इज मस्कुलर टिश्यूज। देखो बेटे नेम से पता लग रहा है, दे आर कॉल्ड एज मस्कुलर टिश्यूज। दिस मींस दे आर एक्चुअली दोज टिश्यूज व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स योर मसल्स। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज दे जनरली कॉन्स्टिट्यूट योर मसल्स। मसल्स में प्रेजेंट जो टिश्यूज है उनको बोला गया है मस्कुलर टिश्यूज। कैसे हैं ये टिश्यूज? तो कहते हैं कि दीज आर द इलॉन्गेटेड काइंड ऑफ टिश्यूज। ठीक है, कैसे हैं? इलॉन्गेटेड एंड देखिए फर्स्ट लाइन ही, मसल टिश्यूज दे कंसिस्ट ऑफ इलॉन्गेटेड सेल्स। मसल टिश्यूज हमेशा इलॉन्गेटेड सेल्स से बने हुए होते हैं and these elongated cells they are actually known as the muscle fibers. They are known as muscle fibers. Okay, but elongated cells which are known as muscle fibers. And what is the function? Function क्या है इनका? तो आपको पता है कि function क्या है? Movement in your body. तो बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट्स होती हैं वो आपके मसल्स एंड बोन्स की वजह से होती हैं। तो ये जो मसल्स हैं वो आपकी बोन्स जो है इनको फ्लेक्सिबल मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। फिर देखिए दिस मसल्स दे आर कंसिस्ट ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स एंड दीज प्रोटीन्स आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, मसल कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स व्हिच कैन इजीली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द मसल टिश्यू इज कि दे कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन व्हिच इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो आपके मसल्स जो हैं जिस प्रोटीन से बने हैं उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिलैक्स भी हो सकते हैं। ठीक है बेटे, हायर क्लासेस में आप जानेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नेम क्या है। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि टाइम टू टाइम आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। ओके, सी द पिक्चर दैट इज गिवन इन योर बुक। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज चिल्ड्रन। सी फर्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर नोन एज स्टेटेड मसल्स। दे आर नोन एज stated muscles. Why they are known as stated muscles? See the diagram. There are so many striations, bands or lines they are present over the surface of the muscle fibers. Muscle fibers की जो surface है उसके ऊपर बहुत सारी lines present है, striations present है, bands present है. Because of these they are known as the stated muscles. Clear बेटे? And another very important thing is कि these stated muscles they are also known as स्केलेटल मसल्स। इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं और स्केलेटल मसल्स के अलावा हम इनको कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। द वर्ड वॉलंटरी मीन्स इफ वी आर एबल टू मूव अवर मसल्स अकॉर्डिंग टू अवर विल। ठीक है, अगर हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है अपने मसल्स के मूवमेंट्स कर सकते हैं तो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर नोन एज द वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड सच टाइप ऑफ मसल्स आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स। क्लियर बेटे? तो फिगर नंबर 6.11 लिखा है ना, उसके एग्जैक्टली नीचे देखिए वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। ठीक है, हम अपनी विल अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अगर अपने मसल्स को मूव कर सकते हैं तो सच काइंड ऑफ मसल्स दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन योर लिम्स। कहाँ पे प्रेजेंट है आपके ये मसल्स? आपकी लिम्स के अंदर प्रेजेंट है और कहते हैं कि इन मसल्स को जो है हम जब चाहे जो है उसको मूव करवा सकते हैं, जब चाहे उसको रोक सकते हैं। So these muscles are known as the voluntary muscles. So another name of the voluntary muscles are also known as skeletal muscles or it is also known as stated muscles. तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइप के जो मसल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स कहते हैं या फिर हम उनको कहते हैं stated muscles या फिर हम उनको कहते हैं voluntary muscles. एग्जाम्पल क्या है? मसल्स प्रेजेंट at our legs. ठीक है, या सिंपली लिखिए मसल्स ऑफ लेग्स। ठीक है बेटे, हाउ मेनी लेग्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी? देखो सिंपली अगर हम बोले तो हमारे पास जो है 2 क्या है? 4 लिम्ब है और 2 ही हमारे पास हिंड लिम्स है। ठीक है बेटे, इधर देखो ये मेरे 2 क्या है? 4 लिम्स है। मेरे 2 आर्म्स जो है वो मेरे
फोर लिम्स है और मेरे 2 legs जो है वो मेरी हिंड लिम्स है, यानी आई हैव 1 pair of 4 limbs and 1 pair of hind limbs. So I can easily move my forearm like this. ठीक है, मैं अपने forearm को रिमूव कर सकती हूँ. अभी मैं ऐसे खड़ी हूँ इस डाइट पे, अब मैं थकी हूँ, फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ. I can also expand my arm like this. So I can move my forearms and my hind limbs movements according to my will. So that's why this kind of muscles are known as the voluntary muscles. ठीक है बेटे, तो जितने भी हमारे स्केलेटल बोन्स के साथ अटैच्ड मसल्स हैं, दे आर नोन एज our skeletal muscles or voluntary muscles or stated muscles. So see the diagram of the stated muscles, but like this. So many bands they are present over this. ठीक है, बहुत सारे बैंड्स या बहुत सारे स्ट्रेशंस जो है मसल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं. क्लियर बेटे? कुछ बैंड जो है वो डार्क होंगे एंड कुछ बैंड जो है वो लाइट बैंड्स होंगे. सम ऑफ द बैंड्स आर द डार्कर बैंड्स एंड सम ऑफ द बैंड्स आर द लाइटर बैंड्स. बिकॉज when we view these muscles under the microscope, what you see different kind of bands. Some are dark and light over them. That's why these muscles are also known as striated muscles. और striations word का मतलब होता है lines. क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर देखो एक चीज उसने और बताई है, cells of the striated muscles they are long. ठीक है, striated muscles के सेल हमेशा कैसे होती हैं? लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं एंड अनदर थिंग इज अनब्रांच्ड. इन मसल्स की फर्दर ब्रांचेस नहीं हो रखी हैं, तो दे आर द अनब्रांच्ड टाइप ऑफ मसल्स. एंड अनदर थिंग इज multinucleate. Multinucleate means so many nucleus they are present inside the muscular fibers. इनके जो फाइबर्स है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो ये मसल्स जो है वो अनब्रांच्ड है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है एंड सिलेंड्रिकल है. क्लियर बेटे? सारा क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए फिर कहते हैं कि देयर आर सम ऑफ द अदर मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन योर बॉडी बट यू आर नॉट एबल टू मूव दोज मसल्स अकॉर्डिंग टू योर विल. तो सच टाइप ऑफ मसल्स विच आर द सेकेंड वन दे आर नोन एज द इनवॉलंटरी मसल्स. ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मसल्स हैं जिनकी मूवमेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ब्लड वेसल्स इन योर बॉडी एंड ब्लड इज रनिंग थ्रू दोज ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने ब्लड को बोलते रुक जाइए तो वो रुक जाएगा एंड फिर आप चाहते हैं कि वो चलेगा तो वो चलने लगेगा. तो देयर आर सम ऑफ द मसल्स दैट आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल्स बट दे डू नॉट इंटरफेयर इन द फ्लो ऑफ द ब्लड. these muscles, these muscular movements, they are not controlled by you according to your will. So such type of muscles are known as involuntary muscles. ठीक है बेटे, अब अंडरलाइन कर लेंगे. देखो लिखा है उसके फंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट है ये वाले मसल्स. तो दिस मसल्स दे आर जनरली फाउंड. ठीक है, एक तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल बेटे वर्ड यूज किया गया है आपकी फूड पाइप के लिए. तो आपकी फूड पाइप जो है उसको आप एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हो. तो एलिमेंट्री कैनाल की सरफेस पे प्रेजेंट है ये मसल्स. ठीक है, इन मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी सरफेस जो है उस पर इस तरह के कोई भी बैंड्स प्रेजेंट नहीं है. इनकी सरफेस कैसी है? स्मूथ है. जब आप इन्हें माइक्रोस्कोप में देखेंगे you are not able to find any kind of bands that are present over the surface. So that's why they are known as smooth muscles. Another name they are known as involuntary muscles. You cannot control their movements according to your will. Okay bete? So these are present in the alimentary canal, surface of the alimentary canal. They are also found on the surface of the blood vessels. ठीक है, how many types of blood vessels are there in your body? कितने तरह की ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर? यस बेटा स्पीक. कौन सी? आर्टरीज एंड वेन्स. यस वेरी गुड. आर्टरीज एंड वेन्स. ठीक है, आर्टरीज जनरली प्योर ब्लड लेके जाती हैं और प्योर ब्लड का मतलब है द ब्लड दैट इज रिच इन ऑक्सीजन. एंड वेन्स जो है वो जनरली ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम द टिश्यूज एंड वो ब्लड इम्प्योर ब्लड है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. ठीक है बेटे, इसके अलावा कहते हैं कि दीज मसल्स आर आल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ योर आई. ठीक है, आपकी आई जो है उसकी आइरिस में भी ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं. इसके अलावा आपकी यूरेटस में प्रेजेंट होती है. बताइए मुझे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर यूरेटस? देयर आर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन योर यूरेटस एंड यू नो दैट कि योर यूरिन इट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है बेटे,
और उसके बाद वो कहते हैं कि when your ureter muscles they relax then that urine it comes out from your body। तो आपके यूरेटर्स में प्रेजेंट मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं, यूरिन के एक्सपल्शन में इन्वॉल्व। इसके अलावा देखो दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। लंग्स की ब्रोंकाई के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई क्या होती है, ओके देखो ये वाला स्ट्रक्चर हमें आता है। वी हैव ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम सो मेनी टाइम्स, ठीक है। आपने कई बार रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया है ऐसे, ठीक है। दिस इज द वॉइस बॉक्स, याद आ रहा है। एंड इस तरह की एक हमने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस, ट्रैकिया। एंड उसके बाद इस तरह से इसके 2 पार्टीशंस हो गए थे, ठीक है बेटे, और इनमें भी रिंग्स प्रेजेंट थे इस तरह से। एंड ये दोनों जो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर थे ये किसके अंदर एंटर हो गए थे, आपके लंग्स के अंदर एंटर हो गई थी। एंड लंग्स में जाने के बाद इट फर्दर डिवाइडेड इनटू सो मेनी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो है जो ट्रैकिया के फर्दर डिविजन है इनको हमने क्या बोला है, ब्रोंकाई, ठीक है। तो वन ब्रोंकाइट एंटर्स इनटू योर लेफ्ट लंग, another bronchite enters into your right lung। तो देखो ये क्या लेके जा रही है ब्रोंकाई आपके लंग्स के अंदर, क्या लेके जा रही है, एयर लेके जा रही है। दैट एयर इज रिच इन ऑक्सीजन। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो ब्रोंकाई है उसकी सरफेस पे भी क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट। क्लियर बेटे। आपको देखो एक चीज आपको बताई है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ मसल्स विच आर द स्टेटेड मसल्स, तो इसके कंपैरिजन में जो हमारे सेकंड मसल्स हैं जिनको हमने नॉन स्टेटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंटरी मसल्स बोला है, इनके अंदर न्यूक्लियस कैसे होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी, यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियस इज देयर। और अनदर थिंग इज कि द सेल्स ऑफ दिस मसल्स दे आर लॉन्ग सेल्स एंड पॉइंटेड एट द एंड्स, ठीक है। सेल्स कैसे हैं, लॉन्गर सेल्स हैं इस तरह से, ऐसे लॉन्गर सेल्स हैं, और एंड्स जो है उसमें से कैसे हैं, इस तरह से पॉइंटेड है। हर एक सेल जो है उसका क्या है, अपना एक न्यूक्लियस है। तो हर एक मसल फाइबर जो है उसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दे आर ब्रॉडर एट देयर सेंटर एंड एंड्स जो है वो कैसे हैं, टेपरिंग है, ठीक है बेटे। सेकंड वाली पिक्चर देखो, डायग्राम देखिए सेकंड वाला, उसके अंदर आपको जो मसल नजर आ रहे हैं दीज आर नोन एज द स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स, नॉन वॉलेंटरी मसल्स या इनवॉलेंटरी मसल्स हम इनको बोलते हैं। ओके बेटे। अब छोटा सा एक पैराग्राफ नजर आ रहा है, नीचे देखिए थर्ड पैराग्राफ, द थर्ड टाइप ऑफ मसल्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन योर हार्ट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, दे आर नोन एज द कार्डियक मसल्स, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे द कार्डियक मसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट, सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट के अंदर हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर, 4 चैम्बर्स आर देयर। 2 अपर चैम्बर्स आर नोन एज द एट्रियोल्स और द ऑरिकल्स, ओके, एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर नोन एज द वेंट्रिकल्स, ओके बेटे। तो ऑरिकल्स जो है उसमें लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। चारों के चारों चैम्बर्स जो है दे आर कवर्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ muscular fibers known as cardiac muscles and they are responsible for the contraction of these auricles and ventricles। अब मुझे ये बताइए कि क्या हार्ट में प्रेजेंट कार्डियक मसल्स जो हैं वो वॉलंटरी होंगे या इनवॉलंटरी होंगे, इनवॉलंटरी होंगे, क्योंकि यू कैन नॉट कंट्रोल योर हार्ट, यू कैन नॉट गिव कमांड टू योर हार्ट कि भाई अभी आपने क्या करना है, ब्लड जो है उसको पंप करना है, आप नहीं करना, ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम ऐसे कमांड अपने हार्ट को देंगे तो हमारा हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है और अगर हम उसे कंट्रोल करेंगे देन देयर इज अ रिस्क ऑफ आवर सर्वाइवल। तो दीज मसल्स दे कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू योर विल, या आपकी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। ये कैसे मसल्स हैं, इनवॉलंटरी मसल्स। ओके बेटे। हार्ट मसल्स के उसने फीचर्स बताए हैं। तो दीज हार्ट मसल्स दे आर जनरली सिलेंड्रिकल इन शेप, इनकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है। दे आर ब्रांच्ड, इन मसल्स की फर्दर ब्रांचेस हो गई हैं एंड दे आर ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएट, मीन्स हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, ओनली 1 न्यूक्लियस इज देयर, ओके।
So this completes your muscular tissues. Any doubt? First type of muscles are known as. First type of muscles are known as stated muscles. Another name of stated muscles is voluntary muscles, skeletal muscles. Second type of muscles are known as देखो तीनों नेम बोलने हैं हमने. सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स आर नोन एज अनस्टेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स. एंड थर्ड टाइप ऑफ मसल्स आर कार्डियक मसल्स ओनली फाउंड इन हार्ट. ठीक बेटे. अब ये भी कैसे हैं? इनवॉलंटरी. क्लियर हो गया सारा कुछ? चलिए फिर आगे चलते हैं. कल हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे और सभी बच्चों को आंसर आने चाहिए. ओके. तो नेक्स्ट टू द मस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट द नर्वस टिश्यू. ठीक है. नर्वस टिश्यूज उसके बाद आ जाते हैं. तो देखो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट द नर्वस टिश्यूज आर एक्चुअली दोज टिश्यूज दैट कॉन्स्टिट्यूट योर नर्वस सिस्टम या फिर नर्व्स. ठीक है. जो आपके नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट टिश्यूज हैं उनको हमने क्या बोला है? नर्वस टिश्यूज बोला है. एंड ऑल द सेल्स व्हिच एक्चुअली फॉर्म दिस नर्वस टिश्यू दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी that they can receive stimuli from their environment. ठीक है. वो क्या कर सकते हैं? अपने environment में किसी भी तरह की कोई भी stimuli जो है उसको क्या करते हैं? रिसीव करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग क्या शो करते हैं? रिस्पॉन्स शो करते हैं. तो यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस that all living organisms have the ability to show responses towards stimuli. So if living organisms they can show response towards stimuli, this means what kind of tissues are present in them? Nervous tissues they are present in them. Okay बेटे. तो कहते हैं कि cells of the nervous tissue they are highly specialized. And how they are highly specialized? कि when they receive the particular stimuli from the environment they show a characteristic kind of response. ठीक है. तो क्या करेगा? वो क्या शो करेंगे? रिस्पॉन्स शो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल your friend is sitting near to you and she has a needle और वो थोड़े टाइम के बाद आपको क्या कर रही है? नीडल प्रिक कर रही है. ठीक है. तो नीडल जो आपको वो प्रिक कर रही है दैट इज अ एग्जांपल ऑफ ए स्टिमुलस. और आप चिल्ला रहे हैं उसके बाद वो किसका एग्जांपल है? रिस्पॉन्स का एग्जांपल है. तो आपके नर्वस टिश्यूज जो हैं वो क्या करते हैं? स्टिमुलाई रिसीव कर सकते हैं. यहाँ पे जो मैंने स्टिमुलाई बोला इट इज अ काइंड ऑफ ए फिजिकल स्टिमुलाई. ओके बेटे. तो स्टिमुलाई में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. तो नीडल वाला एग्जांपल जो है इट इज एग्जांपल ऑफ ए फिजिकल स्टिमुलस. देयर इज वन अनदर एग्जांपल ऑफ ए केमिकल स्टिमुलस. फॉर एग्जांपल आई हैव कुक्ड अ वेरी टेस्टी फूड अकॉर्डिंग टू मी एंड आई हैव सर्व्ड दैट फूड टू दिस बॉय. ठीक है. और जैसे इसने खाया उसके बाद इसको कैसा लग रहा है? तो ये एकदम से चिल्लाता है एंड बोलता है कि कितना नमक डाल दिया है, इतना जो फूड बिल्कुल टेस्टी नहीं है, इतना नमक डाला है इसके अंदर. ठीक है. तो इसने क्या किया है? ठीक है बेटे. इसने मैंने इसको जब फूड सर्व किया उसके बाद इसने एक स्टिमुलाई रिसीव की कि उसने इसको टेस्ट किया तो उसके बाद उसको वो फूड टेस्टी नहीं लगा है. ओके बेटे. तो ये तो थी स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स उसका क्या है कि उसने अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन शो किए दैट द फूड इज नॉट टेस्टी, टू मच सॉल्ट इज देयर इन द फूड. So this kind of thing is the response. So this is an example of a chemical stimulus. Okay bete. So there is another type of stimulus and that is known as biological stimulus. For example कि नॉर्मली कौन सा सीजन चल रहा है? समर का सीजन चल रहा है एंड एक दो दिन से ना बहुत ज्यादा क्या हो रही है? रेन हो रही है, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, काफी ठंड हो रही है. So some of the people they took shawl to cover their body. ठीक है. ठंड लग रही है काफी ज्यादा, बहुत ठंडा दिन है, उन्होंने शॉल ले लिया. ठीक है बेटे. ये कैसा स्टिमुलाई है? यहाँ पे बायोलॉजिकल स्टिमुलाई है कि यू रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट टुडे इज अ नॉट अ हॉट डे. ठीक है. और आप कैसे महसूस कर रहे हैं? ठंड महसूस कर रहे हैं. क्या किया? कोई भी एग्जाम्पल नहीं होते. तो ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल स्टिमुलस. तो बस एक लास्ट टॉपिक रह गया बेटा. इसके बाद फिर ये चैप्टर हो जाएगा. अच्छा